Hello everyone, today's topic is muscles of facial expression. First of all, the extent of the face above, above, up to the hairline, up to the hairline of the scalp, below, up to the chin and base of mandible, chin and base of mandible, and on side, on each side, up to the auricle. This is the extent of the face. Now, skin of the face, skin of face is highly vascular, therefore plastic surgery give good result. Lax type of skin is thick, contain numerous amount of sebaceous and sweat glands. Sebaceous gland are not supplied by nerves, these are controlled by sex hormones. Therefore, acne is inflammation of the sebaceous gland. Now, fascia. Below skin we have fascia, that is the superficial fascia. Fascia क्या है? Fascia is connective tissue that surround and support vessel, nerve, muscles. Now, superficial fascia is type of loose connective tissue. It is a loose connective tissue and it present immediately beneath the skin. It contains nerve vessels and facial muscles. Deep fascia. Deep fascia is absent on face. Deep fascia absent of face except on the parotid region, that is the paretido-mesenteric fascia, and on some part buccopharyngeal fascia. Superficial fascia contains fat. Also contain fat. Fat on face abundant in abundant quantity. Fat is absent on eyelids. Now, facial muscle. Facial muscle, morphologically facial muscles are subcutaneous muscles. Subcutaneous muscles. Morphologically, these resemble penniculus carnosus. Embryologically, these are derived from mesoderm of second pharyngeal arch. Mesoderm of second pharyngeal arch, therefore supplied by facial nerve. Functionally, facial muscle act as sphincters or dilators. Functionally, facial muscle act as a sphincter or a dilator because facial muscles are arranged in group around the orifices, arranged around mouth, eye, nose and ear. And function of the facial muscle, primary function of the facial muscle is to regulate the orifice, and secondary function of the facial muscle is facial expression. Facial muscles have small motor unit, therefore fine graded movement is possible. Small motor unit same as in intrinsic muscles of hand. And facial muscle have highly developed psychic area of the human brain which expresses the emotional behavior through the contraction of the facial muscle. Now, skeletal muscle, as we study in all muscle, that muscle have origin, muscle have insertion. In skeletal muscle have origin and insertion. First, origin from a bone, insertion on second bone, which and in between they crosses a joint. And during movement, during contraction, movement occurs on joint. But this is not happen in facial muscle because bones of cranium or facial muscles are attached on
viscerocranium or splanchocranium or on facial bones, and bones of cranium bones जो होंगी वो these bones are immovable except mandible, and these bones are immovable. These bones contain fibrous joints. Therefore facial bones not move when the facial muscles contract. Therefore facial muscles generally originate on bone, but they insert on soft tissue, that is on skin or beneath the skin. Therefore contraction of the facial muscle create facial expression or facial movement. And names of facial muscle provide clue for their location, their function. For example, labii. Labii means around the lips. Nasalis or nasi, that is around the nose. Oculi related to eye. Oris related to mouth. Supercilii related to the above the eyebrow or superciliary arches. Inferior below, superior above. Levator means levator. Levator indicates upward movement and depressor downward movement. And orbicularis orbicularis indicate shape of the muscle, that is it is circular or orb like form. It is a circular or orb like muscle. We have two orbicularis muscle, orbicularis oris and orbicularis oculi. Orbicularis oculi is around a circular muscle around the eye, and orbicularis oris is a circular muscle around the mouth. Now facial expressions. Now first of all, facial muscles are divided according to in relation to the orifice. Muscles around the eye, muscle around the nose, muscle around the mouth, and muscles around the ear. These are the orifice. On eye, forehead muscle, that is the frontal belly of occipitofrontalis muscle, and orbital group of the muscle, that is the orbicularis oculi, levator palpebrae superioris, and corrugator supercilii muscles. Nasal muscles contain transverse and alar part of nasalis muscle, procerus muscle, and depressor septi muscles. And muscles of lips and cheek, that is zygomaticus major, minor, orbicularis oris, mentalis, and all. Now first of all, around the eye के अराउंड हम पढ़ेंगे ऑर्बिक्यूलरिस ऑकुलाई. फर्स्ट मसल आएगी हमारे पास फ्रंटालिस मसल, दैट इज द फ्रंटल वैली ऑफ द occipitofrontalis muscle. It originates from the superficial skin and superficial fascia of the eyebrows and insert in the epicranial aponeurosis. Nerve supply by the facial nerve, and it moves the forehead, moves the scalp on the skull and raises the eyebrow, moves the forehead upwards, raises the eyebrow. Second muscle is orbicularis oculi muscle. Orbicularis oculi muscle again have three parts, that is the orbital part of the orbicularis oculi muscle. Orbicularis oculi पे short note आता है. Orbicularis oculi, orbital part, palpebral part, and lacrimal part. ऑर्बिटल पार्ट ओरिजिन कहाँ से होगा ऑर्बिटल पार्ट का? ऑर्बिटल पार्ट जो है ओरिजिनेट होगा मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट से, और जो मसल है वो एनसर्कल करेगी विदाउट एनी इंटरप्शन ऑन द लेटरल साइड, एनसर्कल करेगी इलिप्टिकली, वापस घूमेगी और यहीं पे आ जाएगी. दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द orbicularis oculi muscle.
originate from the medial palpebral ligament, part of the frontal bone, some part of the maxillary bone, and insert in medial palpebral ligament, लूप करके वापस उधर ही आके इंसर्ट हो जाएगी। जबकि palpebral part जो है, palpebral part originates from the medial palpebral ligament but insert on lateral palpebral ligament, इस तरीके से upper and lower portion में palpebral part, and lacrimal part originate from the lacrimal bone and the fascia covering the lacrimal gland and insert on the lateral palpebral ligament. Now function, orbital part क्या करेगा, orbital part tight closure, orbital part क्या करेगा, tight closure of eyelid, palpebral part gentle closure of eye, gentle closure, gently close करेगा eye को, and lacrimal part क्या करेगा, dilate the lacrimal sac. सेकेंड मसल होगी। नाउ ये जो है डिप्रेसर सुपरसीलियाई मसल, डिप्रेसर सुपरसीलियाई कोई अलग से मसल नहीं है। फाइबर्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, फ्यू अपर ऑर्बिटल फाइबर्स जो हैं, फ्यू फाइबर्स, ये जो ऑर्बिटल फाइबर्स हैं ये फाइबर्स फ्रंटालिस और कोरिकेटर सुपरसीलियाई मसल के साथ इंटरमिंगल हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ब्रोज और ये आईब्रो को डिप्रेस करेंगे। डिप्रेसर मीन्स डिप्रेस, सुपरसीलियरी आर्चेस। तो ये जो इसके ऑर्बिटल पार्ट के जो फाइबर्स फ्रंटालिस और कोरिकेटर सुपरसीलियाई जो मसल के साथ मर्ज हो जाएंगे, उन्हीं को हम कह रहे हैं डिप्रेसर सुपरसीलियाई मसल। थर्ड मसल आ जाएगी हमारे पास levator palpebrae superioris. Levator palpebrae superioris, it opposes the sphincteric action of the palpebral part of the orbicularis oculi. Means ये ओपन करेगी palpebral fissure को, जबकि palpebral part of the orbicularis oculi muscle क्लोज करेगी। तो अगर LPS काम नहीं करेगी तो आईज ओपन नहीं करेंगे हम। फोर्थ मसल है आई के अराउंड, दैट इज द कोरियोगेटर सुपरसीलियाई मसल। कोरियोगेटर सुपरसीलियाई मसल, कोरियोगेटर सुपरसीलियाई मसल जो है ये ओरिजिनेट होगी सुपरसीलियरी आर्चेस से और इंसर्ट हो जाएगी स्किन ऑफ आईब्रो में, और ये वर्टिकल रिंकल्स के, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फोरहेड पे वर्टिकल रिंकल्स आएंगे। नाउ फ्रंट, अब जैसे डायग्राम में फ्रंटालिस मसल बोथ साइड कॉन्ट्रैक्टिंग, आईब्रोज आर एलिवेटेड अपवर्ड्स, वन साइड नॉर्मल, वन साइड एलिवेटेड अपवर्ड। फ्रंटालिस मसल इनर पोर्शन कॉन्ट्रैक्टेड, इनर आईब्रोज आर एलिवेटेड अपवर्ड, बट व्हेन प्रोसीरस एंड कोरियोगेटर सुपरसीलियाई कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आईब्रोज क्या हो गई, डिप्रेस हो गई। Next, orbicularis oculi muscle, outer and inner portion compressing together, eyelids are squeezed to shut, and LPS levator palpebrae superioris जब काम करेगी तो upper eyelid is elevated और आंखें खुलेंगी। orbicularis oculi के palpebral part और जो LPS है levator palpebrae superioris, दोनों एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के। पाल्पेब्रल पार्ट क्लोज करेगी पाल्पेब्रल फिशर को, पाल्पेब्रल फिशर आई का जो फिशर है उसको पाल्पेब्रल फिशर कहते हैं, उसको क्लोज करेगी, और एलपीएस उसको ओपन अप करेगी, अपर आईलिड को मूव करेगी। एलपीएस सिर्फ अपर आईलिड में होती है, लोअर आईलिड में नहीं होती है। नाउ मसल अराउंड दी नोज, नोज के अराउंड कौन कौन सी मसल है, प्रोसीरस मसल, देन transverse part of the nasalis muscle and LR part of the nasalis muscle, and depressor septi। ये तीन मसल हम पढ़ेंगे नोज से रिलेटेड। प्रोसीरस, सेकंड है nasalis
एंड थर्ड है डिप्रेसर सेप्टी, ये सेकंड का ट्रांसवर्स पार्ट है और सेकंड का एलआर पार्ट है। प्रोसीरस कंटिन्यूशन ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रंटालिस मसल, ये ट्रांसवर्स रिंकल करेगी अराउंड द ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, यहाँ पे रिंकल आएंगे ट्रांसवर्स ब्रिज ऑफ द नोज पे, यहाँ पे ट्रांसवर्स रिंकल प्रोड्यूस करेगी प्रोसीरस मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ द नेजालिस मसल, और इसको हम कहते हैं कंप्रेसर नीरिस, कंप्रेसर नीरिस, तो ये क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। अराइज कहाँ से हो रही है, मैक्सिला से, क्योंकि यहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ पे जब हम स्कल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं यहाँ कौन सी बोन है, ये मैक्सिला का मैक्सिलरी बोन है। एलआर पार्ट अराइज होगी मैक्सिला से और इंसर्ट होगी एलआर कार्टिलेज के अंदर, और ट्रांसवर्स जो पार्ट था नेजालिस मसल का वो अराइज हो रहा है मैक्सिला से और कंटिन्यू करेगा अक्रॉस द ब्रिज। मसल क्या है, दोनों तरफ की मसल एक साथ आके जुड़ जाएगी, तो ये इनका क्या काम होगा, कंप्रेस करेंगे नोज को और एलआर पार्ट जो है वो डायलेट करेगा। और जब एलआर पार्ट डायलेट हो जाएगा, एल ऑफ द नोज जब डायलेट होगी वो साइन ऑफ एंगर को रिप्रेजेंट करती है। डिप्रेसर सेप्टी, ये इंसिसिव फोसा ऑफ जो मैक्सिला का जो इंसिसिव फोसा है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है मोबाइल पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम पे इंसर्ट हो जाती है, और ये भी एंगर को रिप्रेजेंट करती है, डायलेट करती है नॉस्ट्रल्स को। सेम यहाँ देख रहे हैं हम, एक मसल है लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस अलिके निसाए, ये हम ओरल स्फिंक्टर के अराउंड पढ़ते हैं। एंड दूसरी है नेजालिस मसल, नेजालिस के दोनों पार्ट, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स पार्ट और ये एलआर पार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी डिप्रेसर सेप्टी और यहाँ पे प्रोसीरस मसल। द लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस अलिके निसाए, ये अपर लिप से नोज के साइड से आते हुए ऐसे जाती है और ये नोज के सराउंडिंग में रिंकल्स प्रोड्यूस कर रही है। नाउ अब हम थर्ड ओरिफाइस में आ गए, दैट इज द माउथ। माउथ के अराउंड, माउथ के अराउंड हम अपर लिप से रिलेटेड अपर पार्ट की जो मसल्स हैं वो पढ़ रहे हैं, दैट इज द लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस, ज़ाइगोमैटिकस माइनर एंड ज़ाइगोमैटिकस मेजर। तो लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस अलिके नेज़ाए जो नोज और लिप्स के बीच में थी, सबसे मीडियल मोस्ट ये होगी, उसके बाद में लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस, लिवेटर मीन्स ऊपर करने वाली, लेबिया मीन्स अराउंड द नोज, सुपीरियोरिस मतलब ऊपर लेके जाएगी, एक्शन बता रही है उसका। सेम ऐसे ही लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस अलिके नेज़ाए, दैट इज द ऊपर करेगी लिवेटर लेबियाई लिप्स को, सुपीरियोरिस एक्शन बता रही है, अलिके नेज़ाए अराउंड दी नोज होगी। सो सबसे पहले आएगी मीडियल मोस्ट जो होगी वो होगी लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस अलिके नेज़ाए, देन उसके बाद उसके लेटर आएगी लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस, एंड फिर उसके बाद आएगी ज़ाइगोमैटिकस माइनर एंड देन ज़ाइगोमैटिकस मेजर। ज़ाइगोमैटिकस माइनर एंड मेजर ज़ाइगोमा से, ज़ाइगोमैटिक बोन से रिलेशन है, माइनर मेजर साइज के ऊपर है। तो ये अपर लिप के सराउंडिंग ये मसल है, अराइज फ्रॉम द बोन एंड फेशिया अराउंड द ओरल अपर्चर, और इंसर्ट करेगी सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ लिप्स के अंदर। इनका क्या एक्शन क्या है, एक्शन ये ऊपर की तरफ पुल कर रही है अपर लिप को, क्या कर रही है, सेपरेट दी लिप्स। ये एक्शन देखो, लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस दोनों तरफ, अपर लिप एलिवेट, लिवेटर लेबिया वन साइड का लिप एलिवेट होगा। ज़ाइगोमैटिकस माइनर एंड मेजर बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्लाइटली, स्माइल के लिए ज़ाइगोमैटिकस मसल इसमें स्लाइटली, तो कॉर्नर ऑफ माउथ को स्लाइटली एलिवेट किया और क्या हो गया, क्लोज लिप स्माइल, बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडरेटली ओपन माउथ स्माइल और फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंसिव साइन। फिर ज़ाइगोमैटिकस
मेजर जाइगोमेटिकस जो मेजर मसल है उसका साइज अगर छोटा होता है कंपैरेटिवली, तो थोड़ी छोटी होती है, तो हम जब स्माइल करते हैं तब डिम्पल आते हैं, डिम्पल डिम्पल। ठीक है, मेन मसल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है बक्सिनेटर एंड ऑर्बिक्युलरिस ओरस मसल। बक्सिनेटर एंड ऑर्बिक्युलरिस ओरस। नाउ buccinator muscle. Yeah, this is buccinator muscle. buccinator muscle और इसको हम कहते हैं ट्रम्पेट्स मसल। और ऑर्बिक्युलरिस जो ऑकुलाई जो थी, ऑर्बिक्युलरिस ऑर्बिक्युलरिस ऑकुलाई मसल को हम कहते हैं विंक मसल। विंक मसल, विंकिंग के अंदर ऑर्बिक्युलरिस ऑकुलाई। ठीक है, तो बक्सिनेटर को हम कहते हैं ट्रम्प्स मसल। अराइज कहाँ से कर रही है बक्सिनेटर मसल? इट अराइजेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। यहाँ एल्वियोलर प्रोसेस होंगे मैक्सिला के, यहाँ मैंडिबल के एल्वियोलर प्रोसेस है। इन दोनों के एल्वियोलर प्रोसेस से टेरिगोमैंडिबुलर रैफे अराउंड, यहाँ पे टेरिगोमैंडिबुलर रैफे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एंड द फाइब्रस बैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द टिरिगोइड हेमुलस, मैक्सिला का जो टेरिगोइड हेमुलस है, एंड टू द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। इंसर्ट कहाँ करेगी? इंसर्ट करेंगी मैक्सिलरी फाइबर्स पास स्ट्रेट, जो ये लिप है, अब इसके मैक्सिला के जो मैक्सिलरी फाइबर्स आ रहे हैं बक्सिनेटर के, वो आपस में आके मैक्सिलरी पास स्ट्रेट टू द अपर लिप। लोअर फाइबर्स जो हैं वो मैंडिबुलर फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेट टू द लोअर लिप। इंटरमीडिएट और जो रेफे फाइबर्स हैं वो काइज्मा फॉर्म करेंगे एट द मॉड्यूलस, और ये फाइबर्स कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ वाले ऊपर आ जाएंगे और यहाँ वाले यहाँ आ जाएंगे, ऐसे ये काइज्मा फॉर्मेशन होगी। ये मॉड्यूलस जिसको हम कहते हैं। मॉड्यूलस क्या है? ये वाला पोर्शन ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इन लैटिन मीन्स कार्ट व्हील, नीवस ऑफ अ कार्ट व्हील और हब ऑफ अ व्हील। मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस पे क्वेश्चन आता है। मॉड्यूलस क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर मोबाइल पार्ट दैट इज अराउंड 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ द माउथ। ये एंगल ऑफ द माउथ है, एंगल ऑफ माउथ है, इससे लेटरल होगा। एंगल ऑफ माउथ इससे लेटरल है 1.25 सेंटीमीटर। इसके रिलेशन में क्या क्या आएगा? हम पालपेट कर सकते हैं फेशियल आर्टरी को अगर हम थंब रखते हैं ऑन स्किन एंड अपोजिट विद द इंडेक्स फिंगर ऑन द ओरल म्यूकोसा एंड कंप्रेस जेंटली एंड वी to feel the shape of the modulus like a hub of a cartwheel. Now on angle of the mouth 5 muscle come, 5 मसल से मिलके कितनी मसल से बन रहा है? ये 5 मसल से बन रहा है। मसल कौन कौन सी है? लिवेटर एंगुलाई ओरस जो अपर लिप की मसल है, जाइगोमैटिकस मेजर माइनर नहीं है, जाइगोमैटिकस मेजर एंड लिवेटर एंगुलाई ओरस, ये दोनों अपर लिप की मसल है। बक्सिनेटर मसल जो अभी हम पढ़ रहे थे, डिप्रेसर एंगुलाई ओरस राइजोरस और डिप्रेसर एंगुलाई हम अभी पढ़ेंगे। लोअर लिप में आती है राइजोरस, यहाँ पैरोटिड से इधर मूव करती है, छोटा सा पार्ट होता है राइजोरस। तो इन पांचों मसल से कौन कौन सी? लिवेटर, लेबियाई सुपीरियोरिस, जाइगोमैटिकस मेजर है ना, ये देखो ये रही जाइगोमैटिकस
ये लेवेटर एंगुलाई ऑरिस मसल, zygomaticus मेजर मसल, zygomaticus माइनर नहीं होती है, राइजोरियस मसल एंड डिप्रेसर लेबियाई, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल, है ना, ये होती है। और साथ में बक्सीनेटर होती है। ये जो मसल यहाँ पे है, दिस जो फिफ्थ मसल है वो कौन सी होगी, बक्सीनेटर, बक्सीनेटर हमारी फिफ्थ मसल होगी। तो मॉड्यूलस 5 मसल से बनता है। एट एंगल ऑफ माउथ इट इज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू द एंगल ऑफ माउथ। इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर मोबाइल पार्ट, फाइब्रोमस्कुलर बैंड। मॉड्यूलस, फिर क्वेश्चन पूछते हैं अगर आपने ये बता दिया तो कि मॉड्यूलस और कहाँ है, तो ये मॉड्यूलस ऑफ माउथ है, सेम मॉड्यूलस ऑफ कॉक्लिया होता है। ईयर के अंदर अपन पढ़ेंगे, इट इज अ कॉनिकल शेप सेंट्रल एक्सिस ऑफ कॉक्लिया, ईयर में पढ़ते हैं। नाउ अब ये दिस इज मॉड्यूलस, ये सब मसल्स यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये राइजोरियस है ना, ये राइजोरियस यहाँ पे। अब बक्सीनेटर ओरिजिन देख लिया। अब बक्सीनेटर में क्वेश्चन और पूछते हैं, स्ट्रक्चर पियर्सिंग द बक्सीनेटर, कौन कौन से स्ट्रक्चर बक्सीनेटर को पियर्स कर रहे हैं, दैट इज द पैरोटिड डक्ट, buccal branch of the mandibular nerve and 4 or 5 molar mucous glands lying on the buccopharyngeal fascia and around the parotid duct. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो मसल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट आता है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस सर्कुलर मसल अराउंड द माउथ। ये फर्दर टू पार्ट्स हैं इसके, एक्सट्रिंसिक पार्ट एंड इंट्रिंसिक पार्ट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पार्ट। एक्सट्रिंसिक पार्ट जो है दैट इज डायलेटर, और इंट्रिंसिक जो है वो उसका एक्शन है स्फिंक्टरिंग। एक्सट्रिंसिक इज डायलेटर पार्ट, it is formed by 9 muscles. 9 muscles are arranged in 3 strata with predominance of the transverse fibers, and the deepest stratum is formed by the incisive superior muscle from the incisive fossa of the maxilla, and the incisive inferior muscle from the mandible, and the insidious muscle and the laterally are continuous with the other muscles at the lateral angle of mouth. Intermediate stratum जो है वो बक्सीनेटर मसल से बन रहा है, और सुपरफिशियल स्ट्रैटम इज फॉर्म बाय लिवेटर एंड डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल। नाउ इंट्रिंसिक पार्ट जिसका स्फिंक्टरिक एक्शन है, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल हैव ओब्लिक फाइबर्स। जो एक्सट्रिंसिक पार्ट था यहाँ पे थे ट्रांसवर्स फाइबर्स, और इसके फाइबर्स जो होंगे वो होंगे ओब्लिक फाइबर्स। तो oblique fiber extend from skin to the mucous membranes of the lip. Action क्या है, closes the lip, and deep and oblique fiber compress the lip against the teeth and help in the mastication. Action देख लेते हैं। Orbicularis oris whole muscle contract हो रही है तो upper and lower lip, तो ऐसा एक्शन आ रहा है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होल मसल कॉन्ट्रैक्टेड टाइटली, इस तरीके से। कॉर्नर ऑफ, अगर उसको ऑर्बिकुलरिस ऑरिस हॉरिजॉन्टली पुल हो रही है तो इस तरीके से। नाउ लोअर लिप पे कौन कौन सी मसल है, लोअर लिप पे है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरिस, मेंटालिस, ये तीनों मसल डिप्रेस करेगी लोअर लिप को, ठीक है। तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस बोथ साइड की पुल द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ डाउनवर्ड, डिप्रेसर लेबियाई होल मसल कॉन्ट्रैक्टेड, लोअर लिप प्रोजेक्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड मेंटालिस क्या करेगी, चिन को एलिवेट करेगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ माउथ पे, एंगल ऑफ माउथ के ऊपर कितनी मसल्स हैं, 9 मसल्स। एंगल ऑफ माउथ पे कन्वर्ज कितनी मसल्स होती है, अबाउट 9 मसल कन्वर्ज अराउंड द ओरल फिशर,
3 from the upper lip, that is the levator labial superioris, alicae nizzae, levator labial superioris and zygomaticus minor. zygomaticus minor एंगल ऑफ माउथ पे आ रही है, zygomaticus मेजर जो है वो मॉड्यूलस पे आ रही है और माइनर. और मसल टू द लोअर लिप इज वन, दैट इज द लिप डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरिस. ठीक है, 4 मसल ये हो गई और 5 मसल मॉड्यूलस की. मॉड्यूलस 5 मसल है प्लस 4 मसल, तो एंगल ऑफ माउथ पे कितनी होगी टोटल 9 मसल. मॉड्यूलस में कौन कौन सी मसल्स थी? लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ज़ाइगोमैटिकस मेजर, बक्सीनेटर, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, राइसोरियस. इनके अलावा 4 मसल कौन सी हैं जो एंगल ऑफ माउथ पे आ रही है, एंगल पे ओरल फिशर पे आके कन्वर्ज हो रही है, वो है अपर लिप से 3, लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस, अलिके नेजाए, लिवेटर लेबिया सुपीरियोरिस एंड ज़ाइगोमैटिकस माइनर. एंड लोअर लिप से एक मसल डिप्रेसर लेबिया इंफीरियोरिस मसल. ये वही ऑर्बिकुलरिस ऑरिस 2 पार्ट है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, कंसिस्ट ऑफ अदर मसल वी कन्वर्ज ऑन द लिप, intrinsic, radiating fibers, circular fibers and anterior posterior fibers. Now, if paralysis of buccinator occur, then the food collect in vestibule of the mouth during the mastication. Man cannot blow his cheek. And in paralysis of orbicularis oris, paralysis of half of the muscle prevent the correct closure of the lips on that side. That is dribbling of saliva from the angle of the mouth, slurred speech, ये सब होगा. क्वेश्चन है मॉड्यूलस पे क्या फंक्शन, क्या है मॉड्यूलस का? इट हेल्प्स इन बाइटिंग, chewing, drinking, swallowing, speaking, various facial expression, prevents food from being spilled out from the mouth by constricting the corners of the mouth close to premolar. Area location approximately around the premolars during chewing. मोटर सप्लाई, फेशियल मसल कौन सी होंगी? मोटर सप्लाई है फेशियल नर्व, क्योंकि सेकेंड ब्रिंकियल आर्च से आ रही है. और सेंसरी सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व करेगी. ब्लड सप्लाई फेशियल आर्टरी से सप्लाई है. वीनस ड्रेनेज सेम जो हमने स्कैल्प में पढ़ा था, सेम वीनस ड्रेनेज है फेस का. थैंक यू.